ओके। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। What are signals, what are pathway, and what is transduction? So today I will tell you about uh, what happened if there is a change in the environment. Okay, I already told you. Uh, what is a signal transduction pathway? Uh, I already told you that a cell, what the cell has? Receptors. Cell has receptors. They receive the signals, then transfer that signal to the nucleus, and then there is a response. This is known as, okay, a signal transduction pathway is the process by which cell communicate and respond to external signals. Signal transduction pathway is the process or the process through which a cell communicate क्या करता है communicate करता है and the vital function regulate numerous biological activity so that there is a proper growth, development, and homeostasis in human. So this is a process that actually help the human to remain homeostasis. What is homeostasis? Okay, ये सारा कुछ वो करता है, ठीक है? So this is very important. For that purpose, we need a receptors that can detect the change in the environment and then respond. And between detection and response, there is a transduction. There is a that response will whenever we touch to some hot surface, we detect the stimuli and then respond. Okay, excellent. So what are the there are some terms that are very important during signal transduction pathway. What is kinase? What they actually do? Kinase is an enzyme. अच्छा, kinase is an enzyme that actually play a vital role in signal transduction pathway in signaling. Kinase actually phosphorylate the protein. क्या करता है काइनेस? किसी भी प्रोटीन के साथ अगर फास्फोरस ग्रुप अटैच हो जाए तो प्रोटीन को सिग्नल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सिग्नल का मतलब है वो उसको एनर्जी मिल जाती है। उसको क्या मिल जाती है? एनर्जी। when phosphorus attach to any protein, this उससे क्या होता है? फर्ज किया एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन के साथ फास्फोरस अटैच हो जाए तो क्या होगा? वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी प्रोटीन। अब क्वेश्चन ये है, फ्रॉम वेयर दिस फास्फोरस केम? ठीक है, तो उसके लिए एक जो काइनेस एंजाइम है ना, या काइनेस डोमेन होती है, किसी प्रोटीन का पार्ट होती है, तो वो क्या करती है? काइनेस क्या करती है कि दे कन्वर्ट एटीपी टू एडीपी। यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज एटीपी एंड व्हाट इज एडीपी? adenosine triphosphate. ATP is an energy molecule, is an that actually produced inside the mitochondria. And when ATP is converted into ADP, a phosphorus is released because this is triphosphate, this is diphosphate.
and this phosphorus is attached to any protein, and this protein they got energy, सही है। और इससे क्या होता है कि the signal is transferred from external to the internal proteins, and this protein is then activated, and then they travel towards the nucleus where they activate the genes that will respond to that environment. Similarly, they actually switch on some genes or switch off some genes. ठीक है, तो इसे प्रोटीन काइनेसेस की समझ आ गई क्या होती है? प्रोटीन काइनेस आर एंजाइम दैट मॉडिफाई अदर प्रोटीन्स बाय एडिंग फास्फोरस ग्रुप। लिख ले इसकी डेफिनेशन। प्रोटीन काइनेसेस आर एंजाइम्स that modify other proteins by adding phosphorus group, functioning as on or off switches in signaling pathway. Whenever this phosphorus group is attached to any protein, it will क्या करेगा? ये activate that protein. जो पीछे वाली है, बच्चे बताएं काइनेस क्या काम करते हैं? आपने क्या What I told you? एटीपी को एडीपी को में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन है? काइनेज। और उस फास्फोरस को जब किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं उसको कहते हैं फास्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन। और ये काम सिग्नलिंग के दौरान होता है कि जब एक जगह से सिग्नल मिलता है तो मैंने जिस तरह भी फर्ज किया, मैंने जीआर कौन है, जीआर को कहा कि ये काम करो, ठीक है, अब जीआर एक्टिवेट हो गई। जीआर क्या हो गई? ठीक है। और पहले ये क्विसेंट थी। क्विसेंट का मतलब साइलेंट थी। व्हेन बनी हुई थी, प्रोटीन थी, ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनी हुई थी, लेकिन बाहर से सिग्नल आया और इसने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब ये एक्टिवेट होने के बाद, अच्छा, इसमें जो मेन मैसेंजर है रिसेप्टर्स हैं, रिसीव किया सिग्नल को, मैंने कहा कि बाहर स्टिमुलस को रिसीव किया, वो ट्रांसमेम्ब्रेन के थ्रू नीचे गया, नीचे काइनेज डोमेन थी, उसने ये नीचे अगली प्रोटीन को जाकर एक्टिवेट कर दिया। अब वो प्रोटीन गई न्यूक्लियस के अंदर। ये प्रोटीन कहां गई? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में उन जीन्स को एक्टिवेट कर दिया जो उस स्टिमुलस के दौरान दे विल हेल्प द बॉडी टू मिटिगेट दैट स्ट्रेस। Okay, so this is known as these एक होते रिसीवर्स हैं जो ये प्रोटीन है, और यहां तक जो पहुंचते हैं इसको कहते हैं एम्पलीफायर। क्या कहते हैं? जो कि सिग्नल को कहां पर लेके जाते हैं? न्यूक्लियस तक। इसको सेकंड मैसेंजर भी कहते हैं। जो एम्पलीफायर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स क्या होते हैं? दे आर सेकंड मैसेंजर। they actually transduce signal received from the receptors। जो रिसेप्टर से सिग्नल लेते हैं उनको न्यूक्लियस तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडर्स, वो काइनेज। ठीक है, नहीं, जो डिटेक्ट करता है वो फर्स्ट मैसेंजर होगा, जो सेकंड मैसेंजर होगा वो काइनेज होगा तकरीबन, ठीक है। और सेकंड मैसेंजर के अंदर प्रोटीन काइनेज होता है, जो सेकंड मैसेंजर होता है। अच्छा, अब ये रेले फर्ज किया, एक there's the protein, this is the signal I received it, and I go there, and then I gave this signal to another protein, then they go there. It's like a relay race. You have an idea about relay race? क्या होती है? अगला फर्ज किया मैंने, आपको दी, आपने आगे दे दी। दिस इज नोन एज relay race। अब इसमें क्या होता है कि one protein when they are activated, they give signal to another protein, that protein will give signal to, finally this signal will transfer to the nucleus, finally this transfer to the nucleus where they produce another proteins. The gene is activated, they make RNA make protein, and this protein then they solve the problems or
if there is a cold outside, so unsaturated fatty acid will produce. What are these unsaturated fatty acid? That are like oil-like compound. I already told you that the cells के इर्द गिर्द क्या बनने शुरू हो जाता है? Oil बनना शुरू हो जाता है. So all those plants or animals are those who lives in cold areas, they produce unsaturated fatty acid. Okay. And then major signaling pathway, understand human cellular communication. If you want to know what are the human cellular communication, you need to know this. What are the different kinases? What are the different proteins that play a crucial role in cell growth, survival, and immune response? If there is a pathogen attack on your body, how your body respond? By this pathway, through this signal transduction pathway, and this is also known as plant immunity. If they respond to pathogen, then that is known as plant human immunity. क्योंकि I mostly work on human plants, that's why immunity किसे कहते हैं? हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स करना, ताकि जो पैथोजन आए उसको किल करना, उसको क्या कहते हैं? इफ वी हैव द एबिलिटी. ओके, आपको पता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो है ना, भी स्किन के अंदर है, वो बाहर कोल्ड को हम महसूस कर लेते हैं. और रिसेप्टर्स हमारे सेंसर्स. सेंस क्या होता है? 5 सेंसर्स है हमारा. सबसे अगर हम बुराई को देख, सबसे पहले हम कैसे महसूस करते हैं? आईज को. ठीक है, तो इसलिए आईज की हिफाजत करनी चाहिए. ठीक है, आप अपनी सारे ना चिन को हाथ लगाओ. आपने मेरी आवाज नहीं सुनी, ज्यादातर ने इधर हाथ लगाया. इट मीन्स दैट आवाज से ज्यादा आप पहला देखते हैं आईज. ये मैं एक्चुअली आपको रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा था कि आप लोग पहले किसको देखते हो? आईज को. इसलिए जो सबसे पहला जो बुराई होती है वो आईज से देखते हैं, फिर दिल में जाती है, फिर गुनाह में जाती है. समझ आई? तो सबसे इसलिए अपनी आंखों की हिफाजत करो. ये सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे के अंदर मैंने एक सोशल एग्जांपल आ गई. समझ आ गई आप लोगों को कि ये जो रिसेप्टर्स हैं, देयर आर 5 सेंसर्स हैं. इस सेंसर्स का आप लोगों ने अच्छे तरीके से जीआर संभालना है और इसका इस्तेमाल करना है, कि ताकि आपको पता चले कि व्हाट आर दीज सिग्नलिंग पाथवेज एंड हाउ दे वर्क. हमारे सेंसर्स क्या है और इसको कैसे काम करना है. ठीक है, हाईलाइटिंग. अच्छा, उसके बाद है मैप के पाथवेज है. मैप के इज एसेंशियल फॉर मैप के क्या है? मैप के एंड के ऊपर आ जाता है, ये काइनेज है. क्या है? काइनेज. दे आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एंड रेगुलेटिंग प्रोसेस लाइक डिवीजन एंड रिस्पॉन्स टू ग्रोथ फैक्टर्स. फिर इसी तरह एक ही टी पाथवे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल सर्वाइवल, मेटाबॉलिज्म, प्रमोटिंग. ये मैं प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगा. फिर इसी तरह डिसरेगुलेशन ऑफ दीज पाथवे कैन लीड टू डिजीजेस सच एज कैंसर एंड डायबिटीज. अगर इन पाथवेज के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, इफ दे आर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग, देन देयर इज द बॉडी will remain active, there is no disease. If there is a problem in this signaling transduction pathway, there will be a disease like cancer, like diabetes. Okay, so we need to know what are these pathways. Signaling transduction pathways existed for different diseases. Like पैथोजन आता है तब कौन सी डिजीज है, तो कौन सा पाथवे एक्टिवेट हो रहा हो. जब कैंसर होना है तो क्या होगा, कौन सा ऐसा पाथवे है. अगर इफ दिस एग्जिस्ट, देयर इज अ नॉर्मल लाइफ. इफ देयर इज अ चेंज इन दैट पाथवे, there will be a cancerous growth, there will be a and similarly if we normally take little amount of sugar and our body usko digest kar rahi hai, and we are getting energy from that sugar. This is the normal pathway. If we take too much sugar, definitely there will be a
change in that signaling pathway, and there will be a disease like diabetes or sugar or something like that. So there is need to understand, if you are a student of public health department, you should know what is signal transduction pathway. Okay, so for immune activation, the pathway name is JAK pathway. JAK pathway. JAK stat pathway. JAK stat for the immune activation. This is initiate a JAK stat pathway initiated by transmitting signaling from cytokinin, enabling immune cells to react effectively to pathogen. अब cytokines क्या होते हैं? What are cytokines? Cytomine, division of cytoplasm. Excellent. Okay. So, what's your name? That's great. So, क्या है कि सेल डिवीजन, तो जैक स्टैट पाथवे के अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है इसका साइटोकाइंस का. दे एनेबलिंग इम्यून सेल्स टू रिएक्ट इफेक्टिवली टू पैथोजन. अच्छा, जैक स्टैट पाथवे इज लिंक टू वेरियस डिजीजेस. अगर इसके अंदर इस दिस पाथवे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल so that there is a coordinated immune response and promoting cell growth and differentiations in human cells, like especially in lymphocytes. Okay, so if there is a problem in this pathway, JAK-STAT pathway, there is a disease that is viral disease or bacterial disease. क्या? JAK-STAT pathway initiate immune response. Immune response क्या होता है? इम्यूनिटी क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर? इम्यून सिस्टम होता क्या? व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यून सिस्टम. Okay, that's very good question. Means the immune system is a system in our body that help. Okay, so what we actually do, these doctors are very bad because they actually give us a lot of medicine. They does not allow our immune system to work properly. You know, our body has defense proteins. Okay, so when we eat drugs, this will destroy our immune system. Let the nature works. Whenever you feel that there is something happen in our body, please allow our body to detect that pathogen, transduce that pathogen, and expose, so that our body they become learner. जब ये लर्निंग कर लेगी, जब ये बॉडी अपनी लर्निंग कर लेगी, तो क्या होगा कि हम उस पैथोजन से बच जाएंगे, उस पैथोजन से. लेकिन हम क्या करते हैं, हम बॉडी को इंटेलिजेंट होने ही नहीं देते, हम उससे पहले ही मेडिसिन दे देते हैं, और वो प्रोसेस पहले ही पैथोजन किल हो जाता है, और आवर बॉडी डोंट नो कि व्हाट हैपेंड. नेक्स्ट टाइम व्हेन देयर इज अ पैथोजन, our body is not trained, so we have to again we need to take medicine. This is really very bad. This is, ठीक है. तो आपने क्या करना है कि अपनी बॉडी को ट्रेन करना है. अल्लाह मियां ने इतना बड़ा जिस्म दिया हुआ है ना, तो इनके को इसके ऊपर अगर उनको अटैक करता है ना, तो उसको मारने वाला सिस्टम भी अंदर रखा हुआ है. हर चीज के खिलाफ अल्लाह मियां ने हमारे अंदर इम्यून, हमारी बॉडी के अंदर ना, पता है आपको, इतने हमारी बॉडी के सेल्स नहीं जितनी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है.
कौन सी डिजीज है, वो क्या होती है? अच्छा हाँ, अब उसके लिए जब बहुत ही कोई ऐसी हो जाए ना कंडीशन, अब यूरोप में देखे ना जिन्होंने ये सारी मेडिसिन वगैरह बनाई है ना, वो नहीं देते। मैं, मेरे कई कई दोस्त हैं, कजन हैं, सिस्टर्स हैं जो बाहर रहती हैं, कहती डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन नहीं देते, हमें वो पानी सा दे देते हैं बच्चों को देने के लिए। सो वो क्या करते हैं कि दे ट्रेन द बॉडी, हमने अपनी बॉडी को ट्रेन करना है सो दैट they can easily understand this signal transduction pathway, when the pathogen will come, how to respond to that pathogen, okay, and how to kill those pathogens. अब जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पता है कि इम्यूनिटी के लिए ये जो है एंटीबायोटिक्स है, मतलब फिर वो क्यों स्विच करते हैं? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। पैसे के लिए, पैसे के लिए आपको पता है कि 1901 से लेकर से पहले ना पूरी दुनिया में हर्बल मेडिसिन होती थी। लोग इलाज पौधों से करते थे, कावा पी लिया, इस तरह के कोई एक्सट्रैक्ट दे दिए प्लांट के। मैं कहूँगा ये यहूदियों की साजिश है कि उन्होंने क्या किया है कि ये जो हमारा डॉक्टरी वाला पेशा है ना, ये जिसके अंदर हम एलोपेडिसन हैं, ये तो साजिश ही उनकी है ताकि हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट ही ना। हमने बॉडी इतनी खतरनाक मेडिसिन खा खा के सिस्टम तबाह करके रख दिया है, ठीक है, ताकि वो बिजनेस कर सके, ताकि वो, अब पहले ये था जी 110 ते शुगर आ जाए थे, भी पहले था 150 भी शुगर हो तो शुगर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी शुगर की बीमारियां दवाइयां नहीं बिक रही। अब उन्होंने कह दिया कि अगर 120 भी आ गई है शुगर तो शुगर है, पहले 150 से भी शुगर नहीं होती थी, ठीक है। तो अब क्या किया कि हाँ, आप लोगों के माइंड के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। और लाहौर के कई कई मेडिकल जर्नल, पाकिस्तान का मेडिकल जर्नल का एक रिपोर्ट भी आई है कि इसके अंदर हम, हमारे 50 to 60% डॉक्टर जो है ना, वो मेडिसिन डिवाइस करते हैं जो उसकी जरूरत ही नहीं होती। और मोस्ट ऑफ द, ये एक माफिया है, ये क्या है, आपको चाहिए कि जितना आप एक मेडिसिन खाते हो ना उसका इलाज हो जाता है, लेकिन वो एक और बीमारी। इसलिए तो आजकल, पहले तो जमाने में लोग 80 80 साल के बाबे भी इतने एक्टिव होते थे। आजकल तो तुझी 20 साल दी उम्र थोड़ा प्रॉब्लम है, हर बंदा मेडिसिन पे लगा हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, टू बी वेरी, कोई बंदा भी ऐसा नहीं था जो मेडिसिन अगर नहीं जो खाता था, देर देर मेन एक्टिव। और सबसे ज्यादा डिजीजेज ही इसी सदी में क्यों आई है, पहले कभी कोई डिजीज इस तरह की रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो ये नई डिजीजेज, नई प्रॉब्लम्स और नई चीजें, इवन ये जो वैक्सीन, ये जो आजकल कई वायरसेस हैं, ये लैब ग्रोन वायरसेस है, और ये एक माफिया है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, और वो इस सारे सिस्टम को लेके चल रहा है, ठीक है। मैंने बताया ना कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे क्या है, कि आपने अपनी बॉडी को ट्रेन करना, किसको करना, ट्रेन करना, कि कैसे आपने उसको किसी पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आपने कोई बीमारी आ जाए उसको रिस्पॉन्स करना है। हम क्या करते हैं कि थोड़ी जी फिर वो अजकल ना ਜਿਹੜੀਆਂ स्पेशली बच्चे हैं ना, हमारे मेरे बच्चे तो ऐसे ही है, उन्होंने जो लगदा ना कि ਹੁਣ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾ ਵੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਂਟਾਮੀਜ਼ੋਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉਸ ਐਂਟਾਮੀਜ਼ੋਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ, ठीक है। उसने सत्यानाश कर दिया बेदों का, मजाक नहीं करता, ठीक है। और उससे क्या हुआ है, आपका बेदा खराब, सारी बीमारियां दी जड़ केड़ी है, स्टोमिक है ना, समझ आ गई। अब उसकी वजह से अब उनको पता है कि मां को पता हो दवाई ही इलाज है, दवाई ही इलाज है। मामा दी ट्रेनिंग ट्रेनिंग इस तरह की हुई है ना, ਉਹ ਯਾਰ ਪੜਾ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 3 ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ठीक है। और अब क्या हुआ है,
हमारा सिस्टम निकम्मा है। हमारे बच्चे एमफिल के जहां पढ़ के जाते हैं ना, मजाक नहीं करता, बीएस के बाद जब वो एमफिल करते हैं ना, तो उनका नॉलेज पहले से कम हो जाता है। हाँ, पता है, मुझे पता है। एफएससी करके आते हैं, बीएससी में नॉलेज कम हो जाता है। बीएससी में करते हैं तो एमफिल में उनसे कम नॉलेज हो जाता है। इसीलिए अब वो बच्चे जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, को उन्होंने ड्रामेबाजी से एमफिल किया होता है, नकल मार के, बगैर मेहनत किए एमफिल किया होता है, थीसिस ऐसे ही लिखा होता है। हम अभी कहते हैं कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं आ रहे, इस दफा एडमिशन कम हुए ना, निकम्मे आ रहे हैं स्टूडेंट, उसकी वजह हम प्रोफेसर हैं। हम आई एडमिटेड दैट हमने एमफिल में, बीएस में, एमएस में बच्चों को मेहनत करना सिखाई नहीं है। अब जब वो एमफिल करते हैं ना बगैर मेहनत के, कहते हैं यार, हम क्या कहते हैं, कोई नहीं यार, जॉब कर रहे हैं वह, कदे कदे भी आ जाया करे ना, एमफिल करना है नहीं, बस जॉब करनी है आगे तो ना। इसने क्या किया, अब वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, स्कूल टीचर लगते हैं, तो क्या होता है, उन्होंने मेहनत की नहीं होती, उनको पता नहीं होता मेहनत कैसे करनी, फिर बच्चों को मेहनत नहीं करवाते। अब वो पूरी एक नस्ल तबाह हो गई है, ये पूरी की पूरी एक, और मेहनत करना सिखाया ही नहीं जाता। ठीक है, और ऊपर से ये रील्स आ गई है यूट्यूब की, ये वो रील्स में 5, 10, 25 सेकंड की, उससे आप लोगों का दिमाग, और कि आप अगर बड़ी वीडियो भी देख लें तो आप देख नहीं सकते, छोटी सी रील उसने और दिमाग खराब कर दिया कि बस शॉर्ट सा पढ़ना है। ये बकायदा एक माफिया है, पूरी दुनिया में को ट्रेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो आपने इससे जितनी जल्दी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, हमारा मुआशरा अंडरस्टैंड कर लेगा। चाइना ने अंडरस्टैंड किया हुआ है, वो टिकटॉक अपने मुल्क में नहीं चलाता। जो कौमें हैं वो कैसे बनती हैं, हम तो सिर्फ वेस्टर्नाइज होने की चक्करों में ना बेड़ा गर्क कर लेते हैं अपना ना। वो जो वेस्टर्नाइज वाले खुद वो वैक्सीन लगाते नहीं है, लेकिन खाते नहीं है, मेडिसिन खाते नहीं है, और टेस्ट ऑर्गेनिज्म के तौर पर हमें भेज देते हैं, और हम पहले वहां पे टेस्ट लगता है, ये सारे एनिमल्स हैं, क्योंकि हमने वो रिसर्च करनी होता है ना, वो ट्रायल एनिमल्स के ऊपर लगाना होता है, तब वे ह्यूमन पे लगाते हैं। तो आप लोग सारे एनिमल्स हो, वो मेडिसिन भेज देते हैं, वो इधर आगे आपके ऊपर ट्रायल हो जाती है, फिर उसके टेस्ट आते हैं, रिजल्ट आते हैं, डाटा आता है, वो डाटा फिर वो एनालाइज कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी जो जापान के लोगों को हमने मेडिसिन देनी है या नहीं देनी, वो उस डाटे की बेस के ऊपर। ठीक है, डंगर ना बनो, इंसान बनो, एनिमल ना बनो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, अशरफुल मखलूकात हैं आप। तो इंशाल्लाह आपको ये हमारी ये मकसद ही है आप लोगों का, कि आप लोगों को ट्रेन करना, कि कैसे आपने इन माफिया से, आपने कल को इंशाल्लाह माँ बाप माँ भी बनना है, बाप भी बनना है, तो आपने अपने बच्चों को ट्रेन करना है। आपने है, मैंने ली है, मैंने तो ली है, मैं क्योंकि मेरा तो बचपन में मैं कभी नहीं ली थी मेडिसिन। मुझे पता है कि मैं 10वीं तक कभी, अगर पूरे साल में ना एक आध दिन ही बीमार होता था, कभी बीमारी नहीं, कभी मेडिसिन भी नहीं लेते थे यार। हम ये लेनी होती थी, कभी पैराडॉल ले लेते बस। गांव में तो हमारे वैसी फैसिलिटी नहीं थी, वो फैसिलिटी ना होना बेहतर था, क्योंकि जितने फैसिलिटी होवे ना, उसी जल्दी डॉक्टर को जाना, डॉक्टर ने अपनी फीस लेनी है, ड्रिप लगा दो, और ड्रिप ड्रिप, और साढ़े, मैं तो गांव में रहता था ना, हमारे तो उधर को हॉस्पिटल ही नहीं था। मुझे ब्लेसिंग थी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको ये कह सकते हैं, कि हमारे पास तो इस तरह का डिस्पेंसरी भी नहीं थी। मुझे पता है कि कभी हमने मेडिसिन नहीं खाई। अब मेरे बच्चे लाहौर लौड़िए, और वो कहते नहीं कि हम गाँव के हैं, वो लौड़िए थे डेली, मेरी बेगम मैं अपनी बेगम नहीं समझा सके, मैं थोड़ा की समझाना। ओ तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता, तो या अल्लाह ये दवाई दे रही है, ये अपनी मां ममता की वजह दे रही है अपने बच्चों ਨੂੰ, लेकिन तेरी तू पता वा भी मैं की चाहना दवाई ना दवे, लेकिन वो अल्लाह मियां बेहतर करता, अल्लाह मियां बेहतर कर देगा, दुआओं से भी बड़ा असर होता है। लेकिन मैं अभी तक अपनी बेगम को कन्विंस नहीं कर सका, पता नहीं आप लोगों को कैसे कन्विंस करूंगा। तो और मेरी बेगम पूरी पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਆਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। तो
ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ है आजकल की जनरेशन टॉफियों की तरह पैरेडॉल सही होती है ना पैरेडॉल दो हाँ और पता नहीं है इतना